Hi, all of you. Welcome to you all to second video lecture of CT, solid state. So last time हम लोग ने part 1 किया. This is the part 2 and this is the last part. Here I'll solve some few questions, and remaining I'll give you in homework. और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ वो भी तुम लोग को होमवर्क में वापस से सॉल्व करना है. एक बार वीडियो देख लो, होमवर्क नोट डाउन करो, एंड जितने भी नंबर से मैंने बोला है उतने से लेके पूरा तुम लोग को होमवर्क में वापस से करना है. चाहे वो मैंने क्वेश्चन किया हो यहाँ पे सॉल्व, उसको वापस से तुम लोग को रिपीट करना है. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट with 108 question. You can find same question number in your marvels. So KCl and SO2 are, KCl is ionic solid. KCl कैसा है? ionic solid है. और SO2 कैसा है? It's a molecular solid. ओके. सो SO2 का एक्चुअल स्टेट जो है वो गैस है, बट इसको जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे सॉलिड स्टेट में तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा, एंड देन इट विल बी कमिंग अंडर मॉलिक्यूलर सॉलिड. बट ये कैसा है नेचर में? पोलार है, नॉन पोलार है? इट इज पोलार ना, सो इट विल बी ए ऑप्शन. ओके, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. If refractive index is found to be same in all direction throughout a solid, then property is, it is isotropy. So isotropy is shown by, it is an property of amorphous solid. किसका property है ये? Amorphous solid का property है. Then isotropy में क्या होता है? When we go in different direction, property remains same. Isotropy का opposite है anisotropy. Anisotropy is shown by crystalline solids. ये याद रखना है तुम लोग को, इसके ऊपर कुछ ये कॉन्सेप्ट पे एमसीक्यूज आ सकता है. एनिसोट्रॉपी में क्या होता है? व्हेन डायरेक्शन चेंजेस, प्रॉपर्टी आल्सो चेंजेस. ओके, सो 110 का आंसर है सी. आयोनिक सॉलिड्स आर, आयोनिक सॉलिड्स कैसे होते हैं? नो, इट इज गुड कंडक्टर. गुड कंडक्टर सिर्फ मेटालिक सॉलिड है. सॉफ्ट? नो. वोलेटाइल? नो. सो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल. इट इज आंसर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्या बोला है? बीसीसी कंटेन्स 4 into 10 raised to 24 atoms. The number of unit cells present are. So BCC crystal में 4 into 10 raised to 24 atom है, तो कितने यूनिट सेल है? So if you have 1 unit cell, तो कितने एटम्स होते हैं बीसीसी में? 2 एटम्स होते हैं. So यहाँ पे कितने एटम दिए हैं? 4 into 10 raised to 24 atoms are given. So how many unit cells? Cross multiply. 4 into 10 raised to 24 divided by 2. So this will become how much? 2 into 10 raised to 24 unit cells. This is clear all of you? So let's move on to next question. Just a minute, guys. Next question is getting load. Yes, all of you, let's start with next question. Question read karo. In a compound, atom of element Y form CCP lattice and those of element X occupy 2/3 of tetrahedral
tetrahedral void. The formula of compound will be, चलो अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हम लोग ने ऐसे टाइप का क्वेश्चन किया था. So all of you start solving me with me and check your answer. So y क्या कर रहा है, CCP lattice बना रहा है, मीन्स y is 4 and x क्या कर रहा है, 2/3 tetrahedral voids ऑक्यूपाई कर रहा है. So if this is 4, so tetrahedral voids कितने आएंगे, 8. But since it is 2/3 is occupied, it will be into 2/3. अभी हम लोग रेशो लेते हैं x is to y का. This is 4 and this is 8 into 2/3. So ये कितना होगा, 4 1s are 4 2s are. So it will become 1 is to 4/3. So that is 3 is to 4. So formula क्या बनेगा, x3 y4. That is D option. Okay. Next question. In a face-centered cubic lattice, atom A occupy corner position. A क्या कर रहा है, corner position occupy कर रहा है. So I'll just note down. A is occupying corner position. B is occupying face-centered position. If one atom of B is missing from one of the face, यानी totally होते हैं 6 face, but one face is missing. So कितने face हो गए, 5 faces are there. ठीक है. So A will be how much, 1/8 into 8 and B will be how much, half into 5. 8 8 cancel, this is 1 and this is 5/2. अभी इसका रेशो लेते हैं हम लोग, A is to B. This is 1 and this is 5/2. So this is 2/5. So formula है A2B5. कौन सा ऑप्शन है ये, C ऑप्शन. Okay. Let's move on to next question. Due to Frankel defect, the density of ionic solid. So क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट के वजह से, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, एटम्स जो है वो अपना पोजीशन लेफ्ट करते हैं और आके क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करते हैं. नाउ सपोज दिस इज द लैटिस, दिस आर द एटम्स. सो अभी क्या होगा, एक एटम जो है यहाँ पे वो क्या करेगा, अपना जगह छोड़ देगा. सपोज दिस इट विल लीव इट्स प्लेस एंड ये क्या करेगा, इधर आके ऑक्यूपाई करेगा. तो एटम क्या हो रहा है, विद इन द लैटिस ही क्या होता है, मूव हो रहा है. तो इसीलिए डेंसिटी क्या रहेगा, इट विल रिमेन सेम, डेंसिटी विल नॉट चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर क्रिस्टल हैविंग फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट पूछा है. कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉट करेक्ट बोलते हैं और हम लोग करेक्ट वाले को मार्क कर देते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज. ए ऑप्शन रीड करो. फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड where the difference in sizes of cations and anion is large. फ्रैंकल डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड कहाँ पे होता है, जब भी कैटायन और एनायंस के बीच में डिफरेंस इज लार्ज. Cation should be smaller in size and anion should be larger in size. So A is correct option. अपने को नॉन करेक्ट चाहिए, so B रीड करते हैं. Density of crystal having Frankel defect is lesser than that of pure perfect crystal. तो डेंसिटी चेंज होता है क्या, फ्रैंकल में नहीं होता है, it remains same. So B is wrong. ठीक है, फिर भी मैं तुम लोग को C and D क्यों करेक्ट है वो बता देती हूँ. इन एन आयोनिक क्रिस्टल हैविंग फ्रैंकल डिफेक्ट में ऑल्सो कंटेन स्कॉटकी डिफेक्ट. सो यस, देयर आर सम सॉलिड जैसे AgBr है, वो क्या करता है, दोनों शो करता है. प्योर अल्कली हैलाइड डू नॉट हैव फ्रैंकल डिफेक्ट, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट. इफ इट इज प्योर देन देयर विल बी नो डिफेक्ट इन इट. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो both Frankel and Schottky defect? So it is AgI. So it's a theory question. You have to read textbook carefully for this. Next question क्या बोला है,
P-type semiconductor is formed when stress amount of impurity is added to silicon. The number of valence electron in the impurity atom must be. P-type semiconductor है, P है, P यानी क्या होता है? पॉजिटिव टाइप. P-type means positive type semiconductor. So positive is because of holes ना. अब होल्स क्रिएट होने के लिए देयर शुड बी वन लेस एटम, यानी थ्री इलेक्ट्रॉन होल्स होने के लिए देयर शुड बी वन लेस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए. सो इट देयर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आता है. देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस. And if it is 3, so there will be a deficiency. So इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे P टाइप एक्सेस होने पे N टाइप बनता है. We have discussed this in बोर्ड्स वाला लेक्चर में. तो अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ. अगर तुम लोग को नहीं किसी ने मिस किए हैं वीडियोस तो वापस से एक बार जाके देख लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The variation in the property of ability to conduct electricity of substance can be explained with the help of. So हम लोग ने भी स्टडी किया है ना कंडक्टिविटी, conductors, insulators, semiconductors. We have studied with the help of band theory. So answer is C. N-type semiconductor. N-type semiconductor have what? N-type का मतलब क्या होता है? N-type का मतलब है नेगेटिव टाइप. N-type का मतलब क्या है? नेगेटिव टाइप. So negative type, why it is negative? Because of extra electron. So it is B option. 101. Which of the following is paramagnetic substance? So you, for this, to solve such type of questions, you have to go through theory very properly. So paramagnetic का example पूछा है. Paramagnetic means क्या होता है? Temporarily magnet. In presence of magnetic field, it behaves magnetic. It have unpaired electrons. Unpaired electrons present होते हैं. तो ऐसे कौन से compound है? So यहाँ पे oxygen आएगा. With the help of molecular orbital theory, in 11th standard only you have proved it कि oxygen is not diamagnetic, but it is paramagnetic in nature. Diamagnetic is exhibited by, diamagnetism is exhibited by water. In water, you can see there is no unpaired electron, all are paired. So there is diamagnetism. ओके बाकी कोबाल्ट आयन एंड ऑक्सीजन में डायमैग्नेटिज्म नहीं होता है. सो दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन. फर्दर is your homework. You have to solve the question from 90 to 198 178 means तुम लोग को 100 questions भी नहीं है वैसे होमवर्क में. There are not 100 question. Similarly जैसे last homework किया है वैसा ही ये homework भी करना है. You have to solve each and every question with solutions and explanation. मुझे वो नहीं चाहिए, आंसर की नहीं चाहिए. And please don't copy.
दी सॉल्यूशंस, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा है कि तुम लोग लेक्चर ही नहीं अटेंड करो, डाउट सॉल्विंग होमवर्क ही नहीं करो। कॉपी करने से कुछ फायदा नहीं है। नहीं आते हैं क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, 90 to 178 इज लेस देन 100 क्वेश्चन। अगर 100 में से 50 क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं सॉल्व करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल सॉल्व इट फॉर यू, आई सॉल्व ऑल योर डाउट्स। बट जितने तुम लोग को खुद से आते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड रीड बोर्ड्स फर्स्ट प्रॉपरली। बोर्ड्स आएगा प्रॉपरली तभी ही सीटी आएगा करने के लिए। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।